Welcome back, dear students. We are in chapter 3, coordinate geometry. Now in this chapter I am going to discuss about what are coordinates axis, that is x and y axis, what is Cartesian plane, and some relevant terms. Now let us start. Cartesian coordinates. First of all we have to learn about ordered pair. जो भी Cartesian coordinate होते हैं those are the ordered pair. Means the order of the numbers written in the bracket matters. That is, if we read the definition, that is a pair of number a and b listed in a specific order with a at the place and b at the second place is called ordered pair. A, B is the ordered pair. इसका मतलब है जहाँ पर A है वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, उसका अपना सिग्निफिकेंस है, एंड द B हैज़ द डिफरेंट पोजीशन द सेकेंड वन एंड इट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेशन. And we also keep in our mind that a, b, that is this is not equal to b, a. जैसे ही हम a, b को b, a से चेंज करेंगे तो इसका जो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस है वो भी बदल जाएगा, इसकी जो लोकेशन है वो भी बदल जाएगी. सो दिस वे 2, 3 इज वन ऑर्डर पेयर. दैट इज आई कैन ऑल्सो से दैट 2, 3 इज वन कोऑर्डिनेट and 3, 2 is another ordered pair and it is the another coordinate. Now next is coordinate system. Coordinate system basically consists of two axes. Those are named as coordinate axes. The position of a point in a plane is determined with reference to two fixed mutually perpendicular. Mutually perpendicular means आपस में वो दोनों लाइन क्या हों, perpendicular हों. These are known as coordinate axes. Thus, the horizontal line, that is x dash ox, is called x-axis, and the vertical line, that is y dash, is called y-axis, and where these two axes meets, the point is called as origin. मतलब we can also say that the origin of the x-axis, or I can say that origin of the positive x-axis and positive y-axis, by the same way negative x-axis and negative y-axis. The another name of horizontal line, that is x-axis, is abscissa, and the another name of the vertical line, that is y dash, is ordinate. Thus, now let us see how these axes and lines can be expressed this way. This is the line x dash ox. This is horizontal line. Whenever we are taking the position, we also take the horizon, means we also assuming about the earth surface, that is our floor. तो उसके पैरेलल जो भी लाइन होगी वो सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी. Whenever we are standing, our position is vertical, so the line which is 90 degree to the horizontal line is known as vertical line, and the name of the line is y dash, and this is y-axis. Now if I want to mention a point 2 and 3, so we have to take 2 from the x-axis. We have to make a dash line from x-axis at point 2, and we have to make a dash line from 3 on the y-axis. Where these two lines meet, the particular point 2, 3 represent at that particular place. ठीक है, हमें क्या करना है, x एक्सिस पे हमें अगर मुझे 2, 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस से डैश लाइन यहाँ पे 2 के अलोंग ड्रॉ करेंगे, और y एक्सिस से 3 के ऊपर डैश लाइन 3 के अलोंग हम ड्रॉ करेंगे. जहाँ पर भी ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे उस पॉइंट को हम बोलेंगे 2, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट. ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की. तो ऑल द पॉइंट्स विच लाई इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इस लाइन से इस लाइन के यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे सबके साइन क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे. उसके लिए आपको याद रखने का एक दूसरा मेथड मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में जब आप यहाँ देख रहे हैं ऑल द साइन ऑफ एक्स आर पॉजिटिव एंड ऑल द साइन ऑफ वाई आर पॉजिटिव. ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो आएगा वो प्लस प्लस यानी दोनों प्लस होंगे. अब यहाँ देखो, इस क्वाड्रेंट में जब आप आते हो तो आप क्या देख रहे हो, x के तो माइनस में वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और y की प्लस में वैल्यूज हैं. तो इन्हीं वैल्यूज को हमें ऑर्डर्ड पेयर में पहले x लिखते हैं तो x का साइन लगाएंगे, फिर
y लिखते हैं तो y का साइन आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, इन द थर्ड क्वाड्रेंट आप देखो यहाँ पर x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, तो ऑल द साइन ऑफ दीज आर माइनस एंड माइनस। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और y एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, +4x एंड -4y। दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द साइन इन द all four quadrants. Now next is coordinate of a point in a plane, that is which I have explained you in the previous 2 slides, कि किसी भी पॉइंट P को जब हमें कोऑर्डिनेट्स में या फिर ग्राफ पे प्लॉट करना होता है तो हम क्या करते हैं, whenever we have to draw a point P that is AB in the कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो A यूनिट है उतनी डिस्टेंस तो हम y एक्सिस से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और जो ये पॉइंट B है उतनी डिस्टेंस हम x एक्सिस से ट्रेवल करते हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि क्या होगा, इफ़ वी हैव टू ड्रॉ 2 and 3, तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस से हम यहाँ पर कितना डिस्टेंस चले, देखो आप यहाँ से देखो 0 के बाद 1 आए, 1 से हम 2 आए, तो टोटल हम जो डिस्टेंस चले वो 2 यूनिट चले, लेकिन चलेंगे कहाँ पर, यहाँ 3 के अलोंग। और जब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो 1, 2 और 3, तो कितने यूनिट हमने यहाँ पे ट्रेवल किया, हमने 3 यूनिट ट्रेवल किया। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है कि y एक्सिस पे हमें a यूनिट ट्रेवल करना है और x एक्सिस से हमें b यूनिट ट्रेवल करना है, और a और b जब हम दोनों को मीट करेंगे तो वो पॉइंट आपका वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट P का एब्सिका होगा A एंड ऑर्डिनेट होगा B। नाउ नेक्स्ट इज आई एम समराइजिंग द क्वाड्रेंट एंड द साइंस ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, that is region XOY. So this is the region XOY. This is known as first quadrant, and here as I already explained you that both the signs of x and y are positive. तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, x is greater than 0 and y is greater than 0 and sign of the coordinates are plus and plus. Now whenever we are talking about second quadrant, so the region is YOX dash. This is your second quadrant and the sign are minus plus, so we can easily conclude that x is less than 0 and y is greater than 0, ठीक है, so that's why sign are minus and plus. Now third quadrant, that is x dash O y dash, x dash O and y dash, this region is your third quadrant. In this quadrant both the x and y are negative, so we can easily say that x is less than 0 as well as y is also less than 0. Now next is y dash OX, that is, this is your fourth quadrant and here x is greater than 0 and y is less than 0 and the sign of coordinates are plus and minus. This way we can express quadrants, their signs and their particular regions. Now let us see these points are lying in which particular quadrant. So the point 4 and -2, you need not to worry about this 4 and this 2, just you have to focus on the sign of 4 and 2. तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, 4 का साइन प्लस है और 2 का साइन माइनस है, तो प्लस एंड माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, दे आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो द पॉइंट 4 - 2 इज लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, इसी तरीके से -3 और आप 7 देखोगे, आपको 3 और 7 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, जस्ट आपको इनके साइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है. जैसे ही आप देखोगे 3 का माइनस साइन है और 7 का प्लस साइन है, तो आपको क्या मालूम है, माइनस और प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है. सो दिस पॉइंट इज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट. बाय दिस वे द पॉइंट थर्ड, दैट इज -1 and -2, both the signs are negative, so we can easily conclude that the point lie in the third quadrant. Now next is 3 and 6. Here both the signs are positive, so we can say that the point 3, 6 lie in the first quadrant. Now points on coordinate axis. अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारे ही पॉइंट क्वाड्रेंट्स में हो. Some of the points may also lie on the axis, that is y axis or on x axis, or it may be on positive and negative x axis and positive and negative y axis. ठीक है, तो इसी तरीके से
आपको क्या ध्यान करना है, whenever we are talking about coordinates of a point on the x-axis, we all know that every point on the x-axis is at a distance of 0 unit from x-axis. मतलब x-axis अपने आप से कितने डिस्टेंस पर है, 0 डिस्टेंस पर है. That is we can say that कि उसके y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, तो इस वे में all the points which lie on the x-axis are in the form x और 0, और इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज -x and 0. ठीक है, तो अगर मैं आपको कहती हूँ 3 0 बताओ कहाँ पर आएगा, तो यू हैव टू से दैट इट लाइज ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस, एंड इफ आई टोल्ड यू व्हाट इज द लोकेशन ऑफ -2 and 0, देन यू हैव टू explain that it lie on the negative x axis. Now next is coordinates of a point on the y axis. So by the same way, just like we are plotting the point on the x axis, उसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट को y एक्सिस से उसके डिस्टेंस देखेंगे तो वो कितनी होगी, 0 होगी. तो क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वो पॉइंट किस फॉर्म में होगा, 0 y की फॉर्म में होगा. सो इफ समवन टोल्ड यू वेयर इज द पॉइंट 0 1 लाई, so your answer will be it lies on the positive y axis. And what are the coordinates of origin? Origin के coordinates क्या होते हैं, 0 0 होते हैं. Now let us take one example. The three vertex of triangle ABC are 4 1, -2 2 and 3 2. Plot these points on a graph and calculate the area of triangle ABC. So first of all we have to plot these points A, B and C. The coordinates of A are first 4 1, it lies in the first quadrant. Here I am plotting this 1 and 4. देखो ये जो एक बॉक्स बना है, दिस बॉक्स 4 1 यूनिट. ठीक है, तो इसी तरीके से ये इसका 1 हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 4 हो गया. तो पॉइंट A क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा. Now -2 2 lie in the second quadrant, so -2 from this and 2 from this, so point B is here, and by the same way point C is this. Now after joining these points we can see that the triangle ABC is formed. Now to find the area, जब भी हम ग्राफ पे किसी भी पर्टिकुलर रीजन का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमें द एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. तो हम बेस तो इजीली निकाल सकते हैं. देखो बेस के लिए हम यहाँ पर -2 से, ये टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल करी, दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल. तो यहाँ पर -2 से हम -1 आए, देन 0, देन 1, देन 2, देन 3. ठीक है, तो जो गैप्स आए वो हमने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करी. तो दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 एंड 5 यूनिट. इस तरीके से आपका ये क्या होगा, जो बेस होगा BC, दैट इज 5 यूनिट. ठीक है, नाउ इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट 0 दैट इज ऑरिजिन इज 2. अब आप यहाँ पे -2 कंसिडर मत करो, वो कोऑर्डिनेट है. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है. ठीक है, तो आप केवल यहाँ से आपको ये यूनिट्स देखनी है, ये 2 हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये यूनिट कितनी है, 3. तो 3 + 2 कितना हो गया, 5. अब हमें एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर हाइट लेनी है, उसके लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और लेकिन जो ट्रायंगल की हाइट है वो तो AM है ओनली. ठीक है, लेकिन हमें डिस्टेंस कहाँ से कहाँ की पता है, हमें डिस्टेंस A से L की पता है, और वो कितनी है, 4. देखो A से L ये टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं, तो 4 यूनिट यहाँ पर हो गई. लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो तो खाली AM है, तो हम उसकी हाइट कैसे निकालेंगे, AL - LM. AL है 4 और LM है 2, दैट्स वाई ये हो गया 2 यूनिट. नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो इसको सॉल्व करके हमें आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट इज one more example. Some of the points are in front of you and you have to tell me the coordinates of these points. So first of all I am taking point A. So यहाँ से आप देखेंगे ये -6 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास, -6 आ जाएगा. और यहाँ से ये कितना है, 5 से डैश लाइन है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर -6 and 5. कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर यस ट्रू, -3 and 2. कोऑर्डिनेट ऑफ B, यहाँ से हमने लाइन किस पे ड्रॉ करी है, 5 पे, और यहाँ से 4 पे है, तो कोऑर्डिनेट B के क्या हो गए, 5 और 4 हो गए.
इसी तरीके से D के कोऑर्डिनेट्स हम बोलेंगे क्या, 2n-2। कोऑर्डिनेट ऑफ E आर पहले तो ये लिखेंगे -1 और यहाँ से हम y का लिखेंगे दैट इज -4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E आर -1 and -4. This way if the points are plotted in the graph you can represent their coordinate, and if coordinates are given you can plot those points on the graph with the help of the theory provided by me in the particular video lesson. Thank you for watching. Keep practicing.